Christmas has been one of the most unusual Christmas that we had celebrated in our lifetime. और इस बार जो हमने क्रिसमस मनाया है कुछ अलग ही था। हमारी ज़िंदगी में हमने जो जितने भी क्रिसमस मनाए हैं उनके दौरान। But the greatest lesson, I believe, that has come out of these celebration in the midst of the circumstances that we find ourselves in, पर जिस परिस्थिति में हम अपने आप को आज पाते हैं, is that people are important, not the stuff around Christmas. और हमने इससे ये शिक्षा पाई कि हमारे लिए लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सामान सामग्री। So there were people in the life of Jesus also whose birth we celebrated. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी कुछ लोग थे और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में हमने देखा। And you would think that people in the life of Jesus or in the family tree of Jesus were some of the greatest saints of all time. और हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो जन्म के का जो वृक्ष अगर हम उसको देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि हो सकता है बहुत से प्रसिद्ध लोग उनकी वंशावली में हों। But no, my dear friends, that's not the case. पर मेरे मित्रों ऐसा नहीं है। As we would see today in our message, Jesus' ancestry, a chapter full of beliefs. तो आज I will explain what is beliefs. You just say full of beliefs right now. और प्रभु यीशु मसीह की जो वंशावली है जिसको हम वचन में देखते हैं। So what do I mean by the word chapter full of beliefs? What do I mean by this phrase? तो ये जो वाक्य बोला गया चैप्टर फुल ऑफ बिलीफ्स, इसका मतलब क्या है? You know, there is a chapter or two in the New Testament और नए नियम में एक या दो अध्याय ऐसे हैं that we often skip throughout our reading time in the Bible. जो हम अपने पूरे जीवन काल में हम उनको पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते या हम उनको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। Even during the Christmas time, और क्रिसमस के उत्सव के बीच में भी people skip through or they don't just skim, they really skip those chapters in the Bible. और लोग ना केवल उसको ऐसे पढ़ते हैं साधारण तरीके से पर पूरी तरह से उसको छोड़ ही देते हैं। I am not sure if anybody has read very carefully chapter 1 of the book of Matthew. और मुझे लगता नहीं हो सकता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने बहुत ही ध्यानपूर्वक मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को बहुत ही आराम से और समझ के पढ़ा हो। Or chapter 3 of the book of Luke. या फिर लूका रचित सुसमाचार का तीसरा अध्याय। They both list for us the genealogy or the lineage of Jesus Christ. और इन दोनों जगहों में मत्ती 1 में और लूका 3 में हमको प्रभु यीशु मसीह की वंशावली मिलती है। Now, there was a boy who once came from his Sunday school. और एक छोटा बच्चा था जो अपने संडे स्कूल से आया। And he was very excited about the lessons that he has learned. और वो बहुत खुश था, उत्साहित था अपने उस लेसन से जो उसने संडे स्कूल में सीखा। So at the lunch time at home, his mother asked him, "So what did you learn at the church today that you are so excited about?" तो दोपहर के भोजन के समय उसकी माँ ने उससे पूछा बच्चे की कि तुमने क्या सीखा जिसके बारे में तुम इतने खुश हो? And he said, और उसने कहा, "I learned all the forgots of the Bible. I learned about all the forgots of the Bible." तो उस बच्चे ने कहा मैंने उन सब के बारे में पढ़ा जो जिनको लोग भूल चुके हैं। If you have King James version, you would understand. यदि आपके पास किंग जेम्स वर्जन है तो शायद आपको समझ में आएगा। Instead of Abraham became the father of Isaac and so became the father of this or father of that, the King James version writes, और यदि कहा जाए कि इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान, तो यदि हम उसको किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे। So his mother asked him, "So what do you mean you learned about all the forgots of the Bible?" तो उस बच्चे की माँ ने पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने सब भूले हुए लोगों के बारे में पढ़ा? You know, Abraham forgot Isaac. और उसने कहा जैसे किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि इब्राहिम ने आइजक को Isaac forgot Jacob and Jacob forgot Judah.
और इब्राहिम, दाऊद और इसहाक और याकूब, इन सब के बारे में for God शब्द You इस्तेमाल didn't किया get it because you don't read the inspired word of God in the King James Version. Yeah. for God. Abraham begat Isaac, and the little boy heard all he could heard understand for God. So Abraham forgot Isaac, and Isaac forgot Jacob, and Jacob forgot Judah. तो ये बच्चा जो था, इसको बिगॉट शब्द नहीं समझ में आया, उसको केवल फॉरगॉट शब्द ही समझ में And I आया। don't blame him. और मैं उसकी गलती I also don't understand what does the word beget means. और मुझे भी नहीं समझ में आता बिगेट का मतलब Or क्या है। many other words used in the old King James Version. या और जो शब्द हैं जो पुराने किंग जेम्स वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। But anyway, let's get into this chapter today. पर फिर भी हम आज मत्ती रचित समाचार के पहले अध्याय में So जाएंगे। Matthew chapter 1, मत्ती उसका पहला अध्याय, and from verses 1 through 11, और उसकी यदि हम 1 से 11 आयत में जाएं, I'm not going to ask any of you to read it और मैं आपसे किसी से नहीं बोलूंगा कि आप उसको पढ़ें so that you may not forget. ताकि आप भी ना भूल जाएं। But I know even for me, these are very hard to pronounce names. और मेरे लिए भी ये जो नाम है कठिन है बोलना, And that's why most of us skip through this chapter. और इसलिए हम में से काफी लोग जो है इस अध्याय को छोड़ देते हैं। Now, for us, they do not mean anything. हमारे लिए शायद उनका कोई अर्थ ना हो। For us today in 2020, they have no relevance to our faith in Jesus Christ. और आज 2020 में हमारे लिए इन शब्दों से कोई मतलब नहीं दिखाई देता। But for the Jewish people, परंतु यहूदियों के लिए genealogies mattered very much. लेकिन जो यरूशलेम में यहूदी लोग रहते हैं, उनके लिए वंशावली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण It है। was very, very significant for the Jewish people और यहूदियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था to understand the essential nature of the lineage of Jesus, who claims to be the Messiah and who claims to be the King and who claims to be the greatest high priest. और यहूदियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक था ये देखना कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली क्या है और कैसे उसको मसीहा बोलते हैं और कौन कौन से उसमें महायाजक हुए हैं। It was very significant for them to learn and memorize what is their family, where do they come from, who were they, and what was their tribe. और यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, और उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो इस बात को जाने कि उनके पूर्वज कौन रहे हैं, उनके परिवार का वृक्ष कैसा है। It also decided whether you are from the proper lineage in order for you to be the high priest, or you to be the priests, or you have to be serving in the temple. You must come from a particular tribe. Your lineage must be very, very clear. और यहूदियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको ये पता लगे कि किस वंशावली के किस हिस्से से कोई महायाजक या याजक आ सकता है और वो परमेश्वर की सेवा कर सकता है। Or if you want to be on the throne of David, और यदि आपको दाऊद के सिंहासन पर होना है, you want to become a king in Israel, और यदि आपको इस्राएल का राजा बनना है, you must prove that through your ancestry that you indeed are somebody who could claim to be on the throne of David. तो आपको अपने वंशावली के द्वारा इस बात को साबित करना होगा कि आप इस्राएल के राजा के होने लायक हो। Remember at the time of Jesus' birth, आपको याद होगा यीशु के जन्म के समय में Joseph and Mary left their ancestral home, their home in Nazareth. आपको याद होगा कि मरियम और यूसुफ अपने घर नासरत छोड़कर, And even though she was in the last stages of her pregnancy, और जबकि वो गर्भवती थी और उसके अंतिम दिन थे, they had to take that arduous journey to their ancestral home in Bethlehem. तो भी उनको इस यात्रा को पूरा करना था और उसको अपने वंशावली से संबंधित जो जगह थी उनको वहां जाना Because था। the Roman government wanted a census taken. क्योंकि रोमी सरकार जो है वो जनगणना कर रही थी, And they had
commanded everybody to return to their ancestral homes. और उनको आदेश मिला था कि वो अपने पूर्वजों के पास जाएं। Unless you believed in the genealogies, और यदि आप विश्वास करते हैं वंशावली पे, unless you know exactly where your ancestors come from, और जब तक आपको ये ना मालूम हो कि आपके पूर्वज कौन है, आप कहाँ से आए हैं, David or Joseph or Mary would not know that they had to return to Bethlehem. तो मरियम और यूसुफ को नहीं मालूम होता कि उनको बैतलहम पहुंचना जरूरी That's है। why genealogies were so important in those days. इसलिए उस समय में वंशावली बहुत ही महत्वपूर्ण थी। Now, the genealogies, there are actually not very many genealogies in the Bible. और पूरी बाइबल में बहुत ज्यादा वंशावलियों का विवरण नहीं है। There is only one person in the whole New Testament और पूरे नए नियम में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है whose genealogy has been carefully rendered for us. जिसकी वंशावली बड़े ध्यानपूर्वक हमारे लिए दी गई You है। know who is that person in the whole New Testament whose genealogy has been given to us? आपको मालूम है पूरे नए नियम में कौन वो व्यक्ति है जिसकी वंशावली हमें दी गई? जीसस, Only Jesus. केवल यीशु। Why is that important? क्यों ये आवश्यक है? Why not Apostle Paul's? क्यों प्रेरित पौलुस के लिए नहीं है? Why not King Herod's? क्यों राजा हेरोदेस के बारे में नहीं? Why not the other important people and saints in the New Testament? और क्यों नहीं जो दूसरे महत्वपूर्ण संत और दूसरे लोग हुए? Because for the writers of the New Testament, इसलिए क्योंकि जो सुसमाचार के लेखक it हैं, was very significant उनके लिए बहुत आवश्यक था to present to us कि हमें वो दिखाएं that this Jesus, कि ये जो यीशु है, whom they are claiming to be the Messiah, जिसको वो मसीहा बना रहे हैं, is indeed the prophetic Messiah that was prophesied in the Old Testament. कि ये वही जरूरी है कि ये वही जो भविष्यवाणी जिसके बारे में की गई थी, ये वही यीशु है। Especially for Matthew, खास तौर से मत्ती के who लिए was writing his gospel, जो अपने सुसमाचार को लिख रहे हैं, for the Jewish people, for the Jewish audience, वो यहूदियों के लिए लिख रहे हैं। he wanted to show वो उनको दिखाना चाहते थे that this Jesus Christ, कि ये जो यीशु मसीह है, who is the savior of the Jewish people, जो यहूदी लोगों का बचाने वाला है, who is the Messiah, the promised Messiah of Israel, जो इस्राएल का वादा किया हुआ जो मसीहा who है, is the true king of Israel, जो इस्राएल का वास्तविक राजा है, is indeed linked to the ancestry of King David. जो राजा दाऊद की वंशावली से जुड़ा हुआ है। He is a historical king. और ये एक ऐतिहासिक राजा है। He is a legitimate king of the line of David of Judah. और ये जो यहूदा का जो राजा है दाऊद के वंशावली का, वो इससे संबंध रखता Now, है। I could spend days together in trying to understand and interpret each and every person in this genealogy of Jesus. और इस वंशावली को मैं कई समय तक इस पे आपके लिए कर सकता हूँ अध्ययन, But we have a very few minutes today. पर हमारे पास कुछ ही समय है आज। In that, I want to bring to you और इस समय में मैं आपके सामने लाना चाहता the हूँ bleeps in the story or the chapter of Jesus Christ's lineage. और प्रभु यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें कुछ ऐसे शब्दों को मैं लाना चाहूंगा आपके सामने। Now, what are those bleeps? और ये ब्लीप्स क्या हैं? Often in the news or on the radio or on the television, और ज्यादातर जब हम समाचार में टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, if somebody uses certain words that are not good for the public, जो समाज के लिए, पब्लिक के लिए शब्द अच्छे नहीं होते, there is a process of bleeping them out. तो एक ऐसा तरीका होता है कि वो उन शब्दों को छुपाने के लिए उसको ब्लीप कर देते हैं। What is this guy bleep doing? कि ये जो जन है ये ब्लीप क्या कर रहा है? So you wouldn't want those words to hear. आप नहीं चाहते हैं कि वो शब्द सुनाई दें। You don't want anybody to know who is part of your ancestry. तो आप नहीं चाहते हैं कि ये जाने कि आप किस वंशावली में हैं। And yet the Bible tells us these people, and we would like actually, and people, Jesus's family members would like them actually, if they could, bleep those people out, redact those people out. तो इस वंशावली में कुछ ऐसे नाम हैं जिनको शायद लोग लेना ना चाहें जिनके नाम को, तो और कोशिश कर सकते हैं कि उनको किसी तरह से हटा दिया जाए। Especially these 4 bleeps. खास तौर से ये 4 ब्लीप्स। 4
unusual women in the lineage of Jesus Christ. और 4 अभूतपूर्व महिलाएं प्रभु यीशु मसीह की Now, वंशावली in में। the traditional way of writing genealogies of anybody in the Jewish tradition, और यहूदी संस्कार के बीच में यदि किसी का वंशावली लिखनी है, you don't usually mention women's name. उनमें खास तौर से औरतों का, महिलाओं का नाम नहीं आता है। Isaac forgot Jacob, beget Jacob. और Isaac इसहाक ने भूल गया, याकूब को भूल गया। भूल गया। ये बोल सकते हैं, समझ गए लोग, कोई बात नहीं है। Forgot or begot? Begot or forgot, it's the same thing, because they beget and they forgot them. उन्होंने पैदा किया और भूल गए। And they did not include women in those lists. और उस सूची में वो महिलाओं को नहीं इस्तेमाल करते थे। But in this genealogy of Jesus, पर यीशु मसीह की इस वंशावली में I want to bring to you 4 women. मैं आपके बीच में 4 महिलाओं के नाम And they लाना चाहता हूँ। are unusual women. और ये बड़ी अभूतपूर्व महिला They है। are misfits. और ऐसा लगता है कि वो इस जगह पे फिट नहीं They are है, not supposed to be there. और हो सकता है उनको यहाँ होना भी नहीं But चाहिए। there is a purpose for God including these women in the genealogy, in the family tree of Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर के लिए ये एक उद्देश्य है इस वंशावली में कि इनको महिलाओं के नामों को यहाँ Number रखा 1, गया। Tamar. पहला है तमार। Tamar is how the Arabic or the Hebrew people will pronounce it, Tamar. और जो इब्रानी लोग हैं उसको तमार बोलेंगे, English people made it Tamar. इंग्लिश में उसको टेमर बोलते। Rahab, रहाब, Ruth, रूथ and Bathsheba. और बेतशेबा। Now, out of these people say, 3 of them out of 4 और इन 4 महिलाओं में से 3 are clearly non-Jewish. और जो 4 में से जो 3 हैं वो गैर यहूदी हैं। Tamar, जो तामार है, Rahab, रहाब है, Ruth रूथ है, were not clearly Israelites, had no relation with the Jewish people. ये इस्राएली नहीं थी और इनका यहूदियों के साथ कोई संबंध भी नहीं था। But they are included in the history line, in the lineage of Jesus Christ. पर इनको शामिल किया गया प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में। Now, Bathsheba, और जो बेतशेबा है, who is not mentioned here by name, जिसका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया but you इसमें, would see that in verse 6 of Matthew's Gospel. पर आप उसको मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय 6 आयत में Matthew देखेंगे। introduces her और मत्ती जो है उसका परिचय देते हैं इस प्रकार as Uriah's wife. कि ये उरिया की पत्नी है। Now, Uriah was clearly not a Jewish person. और उरिया जो है वो यहूदी नहीं था, He was a Hittite. वो हित्ती था। Probably his wife Bathsheba also was a Hittite. और हो सकता है कि बेतशेबा है वो भी हित्ती हो, We are not sure. हमें पूरा नहीं पता। But later on, anyway, David married her, पर अब बाद में चल के देखते हैं कि दाऊद ने उससे शादी करी and Solomon was born to her through David, और इनके द्वारा सुलेमान पैदा हुआ, who became one of the greatest kings of Israel. जो इस्राएल का एक बहुत ही प्रसिद्ध महान राजा So हुआ। maybe you could consider Bathsheba as an Israelite, तो हो सकता है इसके द्वारा आप बेतशेबा को जो है इस्राएली बना दें। but otherwise all of these women were all non-Jewish, but they are very significant role in the lineage of Jesus Christ. और ये 4 महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, ये किसी तरह से यहूदी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इनको प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ा गया। When men did not mention any women at all, जब आदमी लोग, पुरुष लोग महिलाओं को नहीं in the जोड़ते थे, genealogy of the Hebrew people, इब्रानियों की वंशावली में नहीं जोड़ते थे महिलाओं को, when it comes to Jesus Christ, who is the Messiah, the Son of God,
और जब प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हम देखते हैं जो कि मसीहा है इस्राएल का, the author was inspired by the Holy Spirit जो लेखक है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हुए to specifically include these 4 unusual women who you would like to bleep out of the genealogy of Jesus. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा लेखक ने इन चारों को प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ा, जिसको अगर हम साधारण तरीके से देते तो हम उसको ब्लीप कर सकते थे। The first one is Tamar. और पहली जो स्त्री है वो है तामार। Tamar is considered as either a sinner or a hero depending on your perspective. और आपके दृष्टिकोण से आप उसको चाहे तो पापी बोल सकते हैं या किसी प्रकार से हीरो बोल सकते She हैं। was a widowed daughter-in-law of Judah. और वो जो यहूदी घराना था उसकी एक विडो थी। Her husbands had died. उसका पति मर चुका था। She had more than one. They had all died. और उसके एक से ज्यादा उसके पति थे जो सारे मर चुके It थे। was very important to continue the lineage. और उसके लिए जरूरी था कि वो वंशावली को जारी रखे। So this woman disguised herself as a prostitute and had sexual relations with her father-in-law Judah. तो ये जो तामार जो ये स्त्री है इसने अपना भेष बदला और जो यहूदा है उसके पास ये गई और गलत संबंध किए। Now she was not a prostitute. वो वैश्या तो नहीं थी। She was a very respectable woman in the line of Judah. और यहूदा के लाइन में ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड स्त्री थी। And she wanted to continue the family lineage. और वो परिवार की वंशावली को जारी रखना चाहती थी। So she acted this way. इसलिए उसने इस तरह से अपने आप को मनाया। Now it's a horrible thing to do. It's a terrible thing to do. और ये बहुत ही गलत बात है। It's not a pretty story that we can tell about in our family gatherings on Christmas. और ये कोई अच्छी कहानी नहीं है जो हम बताना चाहेंगे क्रिसमस के दौरान। If we had a family member like that, we would never consider them writing about them in our biographies. और यदि हमारे परिवार में कोई ऐसा जन हो तो हम उसको कभी भी अपने जो परिवार की कहानी है उसमें लिखना नहीं She चाहेंगे। is indeed a footnote in the biblical history. और वो जो बाइबल का इतिहास है उसमें एक फुटनोट की तरह इस्तेमाल किया गया। But when Matthew decided to write the lineage of Jesus Christ, पर जब मत्ती ने इसको वंशावली को लिखना चाहा यीशु की, he picks up that footnote and puts him in the main text. तो वो इस फुटनोट को उठा के तामार का उसको खास वंशावली में जोड़ देता है। He just wants to show us something. वो हमको कुछ दिखाना चाहता है। And not only to us, न केवल हमें, particularly to his audience, खास तौर से वो अपने श्रोतागण the Jewish audience. जो यहूदी लोग हैं। And we will see in a bit why he wanted to do this. और हम कुछ समय में देखेंगे कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। Suffices to say this, और उसको बोलने के लिए not only Tamar, न केवल तमार, but we also, sinners like her, पर हम भी उसकी तरह पापी हैं। are in the need of grace of the Messiah. हमें भी मसीहा के अनुग्रह की आवश्यकता है। That God can lift up somebody like Tamar कि परमेश्वर किसी भी जन को तमार की तरह उठा सकता, and use her in the ancestry of the Messiah. उसको किसी प्रकार से उठाकर पापी के रूप में उठाकर और एक मसीहा की वंशावली में इस्तेमाल करे। All kinds of sins and all kinds of sinners हर प्रकार के पाप और हर प्रकार के पापी are equal in the eyes of God. वो परमेश्वर की निगाह में बराबर हैं। There is none who cannot be who can be kept away from the grace of God. और वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे। The second lady और दूसरी स्त्री in the lineage of Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में is Rahab. वो है राहाब। Now Rahab was another beautiful woman, और राहाब जो है वो भी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, but she was a Canaanitess. पर वो कनानी स्त्री थी। She was the original inhabitants of Canaan when Joshua came to conquer that land. और जब यहोशू जो है उस देश पे चढ़ाई करने के लिए आया तो वो वहाँ रहती थी। She indeed was actually a prostitute.
और वो खास तौर से वो एक वेश्या थी. She had men coming in and out of her house all the time. She was known for that. She was not acting like Tamar. She was indeed a prostitute. और राहब जो है वो वास्तव में वेश्या थी और उसके घर में आना जाना होता था पुरुष लोगों का हमेशा. वो किसी तरह से भेष नहीं बना रही थी तामार की तरह जैसे हमने देखा, पर वो वास्तव में स्वयं एक वेश्या थी. Book of Joshua, यहोशू की पुस्तक में chapter 2 उसके दूसरे अध्याय में and chapter 6, और उसके छठे अध्याय when में, Joshua sent spies to spy out the land of Jericho, और जब वो यरीहो में स्पाइस भेजते हैं, she gave hospitality to these spies from Israel. तो ये जो इस्राएल के स्पाइस थे उसके लिए उसने मेहमान नवाजी करी. The king of Jericho, of course, wanted to kill them, और यरीहो का जो राजा था वो उनको मार देना but चाहता था, she hid them on her rooftop. पर उसने अपने घर में उनको छुपा दिया. And finally, she let them out through the window and through the wall, and they escaped and went back to Israel. और बाद में उसने उनको उस दीवार से अपने घर के खिड़की के बाहर उनको रस्सी से डालकर उनको निकाल दिया, But बचा they दिया. promised, and Joshua promised her, और इसके दौरान यहोशू ने और उन लोगों ने उससे वायदा किया that when we come invade Jericho, कि जब हम यरीहो पर चढ़ाई करेंगे, if you leave a scarlet thread hanging from your door, we will spare you and we will save your life. तो उन्होंने उससे राहब से वायदा किया, यदि तुम अपनी खिड़की पर एक लाल धागा बांध दोगे तो जब हम चढ़ाई करने के लिए आएंगे हम उस धागे को देखेंगे, हम तुमको छोड़ देंगे, बचा देंगे. Remember in the scriptures, आपको याद होगा कि पवित्र शास्त्र में ये लिखा she है, is often called Rahab the harlot. और नए नियम में जब हम उसको पाएंगे तो हम देखते हैं उसका नाम जुड़ा हुआ है राहब वेश्या, Rahab the prostitute. राहब वेश्या. But here she is, पर यहाँ हम देखते हैं picked up by Matthew, मत्ती उसको उठाते हैं. out of all the great women in the Old Testament. पुराने नियम की तमाम जो बहुत ही प्रसिद्ध स्त्रियां थी उनसे बाहर निकालता Matthew है. puts her and her faith as exemplary in the lineage of Jesus because she is one of the great grandmothers of Jesus Christ. और मत्ती जो है वो उसको उसके नाम को उठाकर उस महान जगह पर रखते हैं वंशावली में कि प्रभु यीशु मसीह की जो आदि माता हुई है. Rahab is also included और राहब को और भी जोड़ा गया in another list. एक और दूसरी लिस्ट The में. great heroes of faith in Hebrews chapter 11. इब्रानियों के 11 अध्याय में जो एक बहुत ही प्रसिद्ध महान हीरो हुए हैं उनके लिए. Yes, even Rahab the harlot, Rahab the prostitute, as one of the great heroes of faith. और राहब जो है वो बहुत ही ज्यादा विश्वासी हीरो के रूप में वचन में हमें मिलती है. You know, we can learn a lot of lessons from Rahab's life, हम बहुत से शिक्षा को ले सकते हैं राहब के जीवन से, but we must also know, पर हमें ये भी जानना जरूरी है, those of us who want to keep away from all sinful people, और हम जो अपने आप को दूसरे पापी लोगों से दूर रखना चाहते हैं. she is told in Hebrews chapter 11 and verse 31 और यदि हम वचन में जाए इब्रानियों 11:31 में, that by faith Rahab was saved, कि विश्वास के द्वारा राहब बचा ली even गई, though she was a harlot. जबकि वो एक वेश्या थी. So there is no one who cannot be saved by faith. तो इसलिए कोई भी ऐसा जन नहीं है जो विश्वास के द्वारा बचा लिया जाए. This woman, wonderful woman Rahab, और ये जो अद्भुत एक स्त्री है राहब, her story tells us उसकी कहानी हमें बताती है that God can affirm and save anybody who he likes. कि परमेश्वर जिसको भी चाहता है वो उसको बचा सकता है. God can transform the life of even a prostitute. परमेश्वर जो है ये एक वेश्या के जीवन को भी बदल सकता God है. can change the sinful lifestyle of a harlot and make her to be in the line of Jesus Christ. और परमेश्वर एक वेश्या को भी इस्तेमाल कर सकता है और उसके नाम को जो मसीहा का प्रभु यीशु मसीह की वंशावली उसमें छोड़ सकता Even है, though she was not a Jewish woman. जबकि वो एक यहूदी स्त्री भी नहीं थी. The third lady तीसरी स्त्री, is another beautiful woman and with a beautiful name called Ruth. और ये बहुत ही सुंदर स्त्री है जिसका नाम रूत है. If you remember a couple of months ago or maybe a year ago, we did a series on the book of Ruth. और यदि आपको याद होगा कि हमने
शायद 1 साल पहले हम पूरी रूथ की हमने एक श्रृंखला ली थी। If you want to संदेश listen की। to that message, यदि आपको उसके बारे में सुनना है a series of messages, और संदेशों की श्रृंखला, it's available on our YouTube channel. तो वो आपको मिलेगी हमारे YouTube चैनल Now, पर। she was not also a Jewish woman. वो भी एक यहूदी स्त्री नहीं थी, She was a Moabite. वो एक मोआबिन स्त्री थी। And the Moabites were hated by the Jewish people. और जो मोआबी लोग थे वो पसंद नहीं किए जाते थे यहूदियों के For द्वारा। their generations, they were kept out of link or connection with the Jewish people when they settled in Canaan. और काफी समय तक, शताब्दियों तक यहूदियों से ये अलग रखे गए। You remember? आपको याद है? She left her home, उसने अपने घर को छोड़ा, her nation, her people, अपने लोग, अपनी जाति को छोड़ा, came to Canaan. वो कनान देश में आई, Came to Israel. वो इस्राएल देश में आई, And there she had a relationship with Boaz, और फिर उसका संबंध हुआ बोआज के साथ, who is in the line of Judah. जो यहूदा की वंशावली में है। Because of her faith और उसके विश्वास के द्वारा and because of her virtue, और उसके चरित्र के द्वारा, even though her relationship with Boaz जबकि उसका संबंध बोआज के may साथ not be perfect, वो सिद्ध नहीं था, but we find her in the line of Jesus Christ. पर फिर भी हम उसको देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली She में है। is actually one of the great grandmothers of Jesus Christ. तो यदि आप देखेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह की ग्रेट ग्रैंडमदर है। So what does it say? इसका मतलब क्या है? It shows us the providence of God. ये हमको दिखाता है कि परमेश्वर जरूरत को पूरा करता That है, God is not limited only to a certain people. कि परमेश्वर जो है वो केवल किसी सीमित लोगों के बीच में नहीं He रहता, can use anybody, वो किसी को भी इस्तेमाल कर any सकता है, sinner, किसी भी पापी को, any Gentile, किसी भी अन्य जाति even a Moabite, क्या मोआबित जन को भी, and bring them into the lineage of Jesus Christ. और उनको उठाकर वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ सकता Because है, he is the true Messiah for the whole world. क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए एक सच्चा मसीहा The है। last lady और आखिरी जो स्त्री हम देखते हैं in this chapter 1 of Matthew मत्ती के पहले अध्याय में, जिसे हम देखते हैं, is not even listed there by her name. जिसको नाम के द्वारा भी नहीं जोड़ा गया, Bathsheba is not written there. उसका नाम बतशेबा तो नहीं लिखा I है। believe Matthew did this intentionally. और मैं विश्वास करता हूँ कि जानबूझकर मत्ती ने ऐसा किया You होगा। know, he had the Jewish people in mind. याद है कि उसके दिमाग में यहूदी लोग He थे, wanted to remind them वो उनको याद दिलाना that चाहता था their great king David कि उनका जो एक महान राजा दाऊद है, committed adultery, उसने व्यभिचार किया with somebody else's wife. किसी दूसरे की पत्नी के साथ, So he mentions her, इसलिए वो उसका नाम नहीं लेता, Uriah's wife, not even as David's wife, but Uriah's wife. और वो उसको उरिया की पत्नी के रूप में उसका परिचय देता है। David committed adultery with her, और ये दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया later था, killed her husband Uriah, who was an army commander in his army. और उसने उसके पति उरिया को मार दिया था, जो कि आर्मी का कमांडर था। The son born through this illicit marriage or illicit relationship और ये गलत संबंध के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ, soon after died. वो मर गया। But later on, पर बाद में David did marry Bathsheba. पर बाद में जाकर दाऊद ने बतशेबा से शादी करी। And David, of course, repented. God forgave him. दाऊद ने जो है अपने पापों से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे माफ किया, A beautiful son was born through this marriage, और एक बहुत ही सुंदर बेटा उत्पन्न हुआ इस शादी के who दौरान, later became one of the greatest kings and the richest and the most full of wisdom king in Israel, King Solomon. जो बाद में चलकर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ही महान राजा हुआ, जिसका नाम था सुलेमान। See, this lady is not supposed to be there in this lineage. और यदि आप इस प्रकार से देखें तो ये जो स्त्री है, इसका नाम होना नहीं था इस वंशावली में। It's a blip or a bleep in this story. इस कहानी में जैसे वो एक तरह से ब्लीप है, You wouldn't want to mention that in your family gatherings again. और आप ऐसे परिवार के समारोह में कभी आप ऐसे नाम को जोड़ना नहीं But चाहेंगे। once again, पर फिर से मैं बोलता हूँ, Matthew's purpose is मत्ती का जो उद्देश्य है, God can transform even a sordid affair and transform it for His glory.
परमेश्वर किसी भी संबंध को जो खराब है उसको बदल सकता है अपनी महिमा के लिए। This last woman, even though her name is not mentioned in the lineage, और ये जो चौथी जो स्त्री जिसके बारे में हम देखते हैं जबकि उसका नाम नहीं दिया गया, but this story tells us पर ये कहानी हमें बताती only the women were not the misfits and the unusual people in this lineage. प्रभु यीशु मसीह का जो वंशावली है उसमें कोई भी ऐसी महिला उसमें महिलाओं का नाम है जो किसी प्रकार से मिसफिट नहीं हो सकती, But there were men who were also misfits. पर उसमें ऐसे पुरुष भी थे जो वहां होने नहीं चाहिए How थे। about King David? राजा दाऊद, He was in control of everything. वो हर चीज के अधिकार में था। He could have avoided this situation by being fully involved in the war that was going on. और वो इस चीज को पूरी तरह से अवॉइड कर सकता था जब उस युद्ध में जाने के दौरान। But David was as sinful as Bathsheba or any of these women. और लेकिन जो दाऊद थे राजा थे वो भी बत्शेबा की तरह ही एक पापी थे। What about Abraham? अब्राहम, How many times he lied? उन्होंने कितनी बार झूठ बोला। What about Jacob? और याकूब, How scheming and sinful he has been. और वो कैसे बुरी बातों को वो गढ़ता था। What about Judah, यहूदा, who slept with his daughter-in-law? जो अपनी बहू के साथ सोया। So all of these blips and bleeps in the history of Jesus' lineage इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में हम इतिहास में देखते हैं are not supposed to be there, जो जिनको हम सोचते हैं वो होना नहीं but चाहिए, they are there. पर वो हैं। And very significantly, these 4 women are there और ये 4 स्त्रियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से इसमें शामिल की because गई, they give us clear message. क्योंकि हमें एक स्पष्ट संदेश Why देते हैं। are these bleeps in the family tree of Jesus? और प्रभु यीशु मसीह के इस वंशावली में ये ब्लीप्स क्यों हैं? The clear message that Matthew and Luke and others wanted to give to us और जो एक साफ संदेश मत्ती हमको देना चाहते हैं, that people who have racial prejudice and racial pride, कि लोग जिनके बीच में एक जातिवाद का घमंड है, people who think of themselves as the holier than thou, holier than you, and better than anybody else, the self-righteous people, और वो लोग जो अपने आप को धर्मी जानते हैं, they should know this very clearly, उनको बिल्कुल स्पष्ट रीति से ये जानना है that these men and women, कि ये जो पुरुष और स्त्री sinful and imperfect as they were, और जैसे भी पापी और असिद्ध थे ये लोग, are indeed part of the family lineage of Jesus Christ. वो जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में However, पाए you जाएं। may want to bleep them out, और चाहे आप कितनी भी बार उनको ब्लीप करना चाहें, they are there for the history, they are in the historical records as the lineage of Jesus Christ. और ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड में आज भी पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के द्वारा। Though they were sinners, चाहे वो पापी थे, but they are recorded for us पर ये हमारे लिए लिखे गए as strong people, कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लोग थे, as resilient people who can wake up and rise up from their sinful nature, और ऐसे लोग जो अपने पापी व्यवहार से ऊपर उठ सकते थे, as loyal and faithful women who were saved through their faith, and they saved the people of Israel through their faith. ऐसे लोग, ऐसी स्त्रियां जो विश्वास योग्य थी और अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा उन्होंने बहुत से लोगों को परमेश्वर के परिवार में जोड़ा। Even though society did not want to include women in the genealogies, और जबकि समाज जो है वो औरतों को, स्त्रियों को वंशावली में नहीं जोड़ते थे, Matthew's gospel purposely intentionally writes their names down for us. मत्ती रचित सुसमाचार खास तौर से जानबूझकर हमारे लिए इन नामों को जोड़ते हैं इस वंशावली में। He wants to show us वो हमें ये दिखाना चाहते that हैं you and I don't need to be self-righteous people. कि हमें स्वयं अपनी दृष्टि में धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है। God can pick up anyone परमेश्वर किसी को भी उठा सकता and है use him or her for the glory of God. और वो उसको परमेश्वर की महिमा के लिए स्त्री हो चाहे पुरुष इस्तेमाल कर सकते Even हैं, to bring the Messiah into this world to save the sinners. यहाँ तक कि वो एक मसीहा को उनके पापों से बचाने के लिए ला सकते हैं। Those we consider as insignificant people, हम जिनको असाधारण मानते हैं और जो जिनका महत्व नहीं मानते, those who we consider as Dalits and the Pariahs and the untouchables, और हम उन लोगों को जो अछूत और किसी तरह से ना सामने आने वाले लोग मानते हैं, God loves those people. परमेश्वर उनसे
उनसे प्यार करता है। God, in fact, has a preferential option for the Dalits, for the Paryas, and for the untouchables and the Moabites of this world. और जो लोग हैं जैसे मोआबाइट और जो दलित लोग हैं, परमेश्वर उन लोगों से कुछ ज्यादा ही खास तौर से प्यार करते हैं। Matthew wanted to write to the Jewish people this message very clearly, and they must have understood. और मत्ती बड़ी स्पष्ट रीति से वो यहूदियों के लिए ये लिखना चाहते थे, और मैं सोचता हूँ यहूदी इस बात को समझ गए होंगे That the genealogy of Jesus कि यीशु की जो वंशावली है is full of liars, वो झूठे लोगों से भरी हुई है, is full of murderers, वो घात करने वालों की is तरफ full से of भरी है, thieves, वो चोरों से भरी है, is full of adulterers, वो व्यभिचारियों से भरी है, it's full of harlots or prostitutes. वो वेश्याओं से भी भरी है। It's not a pretty picture. ये बहुत ही सुंदर तस्वीर It's है, not a clean family tree as you would like it to be. और ये एक बड़ी स्पष्ट साफ परिवार का वृक्ष नहीं जैसा आप सोचते होंगे। This chapter 1 of Matthew, और ये मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय, it was a stinging rebuke to the self-righteous Jewish people. और ये घुड़कती उन यहूदियों लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धर्मी समझते थे। What does this mean? इसका मतलब क्या है? It means Jesus was born in a family of sinful people like you and me. इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक पापी घराने में पैदा हुए जैसे मेरा और आपका। In Jesus' family tree, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली there is a में long life of sinners. वो बहुत एक लंबी लाइन है पापियों की, But he also wanted to teach them and teach us परंतु वो हमको ये भी सिखाना चाहते थे that God's grace is sufficient for any kind of sinner or any kind of sin. कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए किसी भी पाप के लिए, पापी के लिए काफी है। I like how Matthew later on after the genealogy, और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बाद जैसे मत्ती लिखते हैं, in chapter 1 and verse 21, this is what Matthew writes. और मत्ती 1 की 21 आयत में मत्ती यूं लिखते हैं, And she'll bear him a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। This Jesus, the Messiah, ये यीशु जो मसीहा है will save his people, वो अपने लोगों को बचाएगा, including those whose names are listed above this verse. उन लोगों को मिलाकर जिनके नाम इस वंशावली में हमने पढ़े। These all sinners in the family of tree of Jesus. ये सारे पापी लोग जो इस वंशावली में, इस वृक्ष में हैं, And anybody who comes after him, और कोई भी जो उसके बाद आएगा, including you and me, आपको और मुझे मिलाकर Jesus will save Amen. his people from their sins. प्रभु यीशु मसीह उनको उनके पापों से छुड़ाएंगे। What Matthew is doing here, यहाँ मत्ती क्या कर रहे हैं? that you take your focus off these sinful people and their sins, क्या आप अपना ध्यान केंद्र से, इनके जीवन से हटा लें, इनके पापों but से, focus your eyes on Jesus, लेकिन अपने ध्यान को यीशु की ओर लगा, who will save his people from their sins. जो उन लोगों को उनके पापों से बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It is important, my dear friends, मेरे मित्रों, ये जरूरी है हमारे लिए that in the same chapter Matthew would write this verse for us. कि इसी अध्याय में जिसमें वंशावली है उसमें इस आयत को जोड़ा है मत्ती ने। And thirdly, और तीसरी बात, the purpose of writing these unusual bleeps in this chapter और जो उद्देश्य है इन नामों को जोड़ने का इस अध्याय में, is to display for us ये हमारे को दिखाने के लिए who Jesus Christ कि is यीशु मसीह कौन है and what following him means today. और उसका मतलब क्या है कि हम उसके पीछे चले आज। You know, Jesus Christ, आपको मालूम है यीशु who मसीह Matthew claims will forgive people of their sins, जिनके लिए मत्ती कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करेंगे, whose ancestry is the only ancestry we find in the New Testament, और जिनकी वंशावली केवल एक ही वंशावली जो पूरे नए नियम में पाई जाती is है, also the one of the most misunderstood and misinterpreted person in the history. और ये ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिनको सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है पूरे इतिहास में। You know, we people we have made of Jesus a great religion around him. और हमने
हम सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ एक धर्म जैसा बना There दिया। is a lot of huge religious paraphernalia we have created as religious people around Jesus and who he is and what it means to follow Jesus. और हमने बहुत ही फर्क बातें उससे जोड़ लिए हैं प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ एक धर्म को बनाने के द्वारा और लोगों के द्वारा। And this religious paraphernalia that we have created, और ये जो धार्मिक बातें जो हमने बना ली हैं, it means Jesus has to be shrined in a beautiful stained glass cathedral. और उसके दौरान ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को किसी एक कैथेड्रल में बस एक सजा दिया गया। He should be worshipped only in the huge sanctuaries, those that only the well-dressed people should come in and sit properly and in a certain way and sing in certain hymns and do the worship in certain way, and only they could be the followers of Jesus Christ. और उसको ऐसा दिखा दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को केवल इतवार के दौरान और बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए एक भवन में और बहुत ही सुंदर तरीके से एक ही तरह से उसको आराधना की जाए और सुंदर लोग कपड़े पहनकर उसकी आराधना कर सकते हैं। We have made or given the impression to the world और हमने एक ऐसा इंप्रेशन दुनिया को दे दिया है that the church means a beautiful, well-dressed choir, well-rehearsed choir. और एक ऐसी तस्वीर बना दी है कि चर्च का मतलब है एक बहुत ही सुंदर क्वायर, बहुत ही अच्छे से तैयार की गई क्वायर, And a well laid out liturgy and formal prayers. और बहुत ही फॉर्मल प्रार्थनाएं हों। And then there should be this organ or pipe organ or shining piano. And unless you have all these things, you cannot worship Jesus Christ. और ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास बड़े बड़े पियानो या बड़े बड़े दूसरे यंत्र ना हो तब तक आप आराधना नहीं कर सकते What यीशु की। does the genealogy of Jesus tell us in this chapter? इस अध्याय में हमें प्रभु यीशु मसीह की वंशावली क्या बताती है? All of these things are not important in following Jesus. और ये सब बातें जो अभी हमने आपके सामने की, इनकी जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के Jesus लिए। came from ordinary families. प्रभु यीशु मसीह एक साधारण परिवार से आए। Jesus came from sinful families. प्रभु यीशु मसीह एक पापी परिवार से निकले। And Jesus is capable of saving any sinner or any Gentile or any Jewish people. और प्रभु यीशु मसीह समर्थ है किसी भी अन्य जाति, किसी भी यहूदी, किसी भी पापी को क्षमा करने के He लिए। called himself a friend of sinners. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पापियों का दोस्त बताया। He was not calling the righteous people to himself. और प्रभु यीशु मसीह धर्मी लोगों को अपने पास नहीं बुला रहे थे। He clearly said, उन्होंने स्पष्ट रीति से the कहा, Son of Man has come to seek and to save the lost. मनुष्य का बेटा इसलिए आया ताकि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनको बचाए। My final point to you and a great encouragement to you today, listening today, wherever you may be, and whatever situation you might be. और मेरा जो आखिरी वाक्य मैं आज आपके सामने बोलना चाहता हूँ, जो आप सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे उनके लिए, No matter what your past is, आपका बीता हुआ समय कैसा भी क्यों ना हो, no matter what your genealogy is, इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस वंशावली से no हैं, matter what your family tree looks like, और इससे भी कोई मतलब नहीं कि आपका परिवार कैसा दिखता है, no matter how many sins you have committed, और इसका मतलब भी नहीं कि आपने कितने पाप किए हैं। Jesus can save you. प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकते हैं। Jesus, whose name is Jesus the Savior, came to save people from their sins. प्रभु यीशु मसीह जो बचाने के लिए आए, जो उद्धार करता है, वो इसलिए पैदा हुए कि हमारे पापियों के पापों को क्षमा करें। You may be a murderer. हो सकता है आप घात करने You वाले, may be living in prostitution today. हो सकता है आप वेश्यागामी में रह रहे हो, You may be living a life full of lies. हो सकता है आप झूठ का जीवन बिता रहे हो, You may be with angry people, or you may be an angry person. और हो सकता है आप गुस्सा करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, आप स्वयं You may be a thief or a looter. हो सकता है आप
चोर हो या लुटेरे हो, whoever you may be, आप कोई भी क्यों ना whatever हो, your sin may be. कोई भी आपका पाप क्यों ना हो। Matthew chapter 1 and verse 21 मत्ती रचित समाचार पहला अध्याय की शायद कहती है, claims that whatever your sin might be or your family's history might be, वो इस बात को आपके लिए घोषणा करती है कि आपका कोई भी पाप या परिवार क्यों ना हो, Jesus can still save you from your sins. प्रभु यीशु मसीह आपको तब भी आपके पापों से आपको बचा No सकते हैं। matter your past or present, चाहे आपका भूतकाल कुछ भी ना हो, चाहे आपका वर्तमान जैसा भी no हो, matter where you have been, ये भी कोई मतलब नहीं रखता कि आप कहाँ रहे, no matter what you have done, और ये भी नहीं कि आपने क्या किया हो। God can give you a fresh start. परमेश्वर आपको एक फ्रेश शुरुआत दे सकते There हैं। are only a few days left in this year. अब अभी कुछ ही दिन बचे हैं इस नए साल में। May I invite you to repent of what you have been and what you have done. मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, आपने चाहे कुछ भी क्यों ना And किया may हो। you come to this Jesus Christ, और काश आप इस यीशु के पास आ जाएं, the Messiah, जो मसीहा है, the Savior, जो उद्धार करता है, who claims to forgive you your sins जो इस बात की घोषणा करता कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा and करेगा, to cleanse you from your past or from your present जो आपके पास्ट से आपको और आपके प्रेजेंट से आपको साफ कर and सकता to है, give you a new life. वो आपको नया जीवन दे Not सकता just है। a fresh start, केवल एक शुरुआत नहीं, which is a beginning, वो जो शुरुआत which है, happens when you accept Jesus into your heart today, वो तब होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण कर लेते but हैं, to follow Him पर आप उसके पीछे चलें, without the religious paraphernalia, बिना किसी धार्मिक बातों के, but to make Him your Savior and you follow Him and you become like Him as He calls you to be. और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, उसको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें और उसका इस तरह से उसके पीछे चलें जैसा वो आपसे चाहता है। He doesn't want to bleep out you from the face of this earth, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को मिटाना नहीं चाहता इस but पृथ्वी पे He से, wants to rejoice in you and He wants you to delight in Him. लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसमें खुश रहें और आप उसमें आनंद May मनाएं। the Lord bless you through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष Let दे। us pray. आइए प्रार्थना करें।